کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالی. صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا. دستار والے ساز اور بربط پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا، میں تیری صنعتکاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا. اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں. حیوان کثرت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا. جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بدکردار پھولتے پھلتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں. لیکن تو اے خداوند عبدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بدکردار پراگندہ کر دیے جائیں گے. لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے. مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے. میری آنکھوں نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا. صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں. وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے. وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے. وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں. جلال باغ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. آمین. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں. خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے ہم پر فضل کیا ہے، ہمیں اکٹھا کیا ہے اور اس قابل کیا ہے کہ ہم یہاں پر اکٹھے مل کر ایک کلیسیا کی حیثیت سے تیری شکر گزاری کر سکیں، تیری عبادت کرتے ہوئے یسوع کے نام کو جلال دے سکیں. خدا ہم شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہاں پر خیریت سے پہنچایا ہے. جو لوگ ابھی راستے میں ہیں، آ رہے ہیں، خدا تو ان کی بھی حفاظت کر تاکہ وہ بھی خیریت سے یہاں پر پہنچیں اور آج کی اس عبادت کے وسیلے سے یسوع کے نام کو جلال ملے. خداوند اس ساری عبادت میں تو ہمارے ساتھ ہو. تیرے پاک روح کی مدد مانگتے ہیں. خدا پاک روح تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو اور برکت دے. تو ہماری حفاظت اور رہنمائی کر. تیرا ہاتھ ہم پر بڑھ جائے. خدا پاک روح تو ہمیں مسا کر اور معمور کر. تیری آگ سے ہم بھر جائیں تاکہ تیری ہم ثنا کر سکیں، لائق طور پر تیری پرستش کر سکیں. خداوند اس ساری عبادت میں ہمارا خیال اور دھیان تیری طرف لگ جائے. جتنے لوگ آج کسی پریشانی کے ساتھ یا کسی بیماری کے ساتھ یہاں پر آئیں، آج یہاں سے شفا کے ساتھ، معجزے کے ساتھ اور تسلی اور اطمینان کے ساتھ واپس لوٹیں. خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو. اور خداوند جتنے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں، انہیں بھی تو برکت دے اور انہیں چھو، ان کے بھی ایمان کو مضبوط کر تاکہ ہم سب اس ایمان میں مضبوط ہو سکیں کہ جہاں بھی تیرے ایماندار لوگ یسوع کے نام سے جمع ہوتے ہیں تو اپنے فضل سے ان کے درمیان موجود ہوتا اور اپنا تخت ان کے درمیان لگاتا ہے. خداوند اپنی حضوری کے وسیلے سے ہر ایک کو چھو اور برکت دے. مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین.
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमुआ है और हम अपनी जुबान से इसका इकरार करके अपने मसीही अकायद पर अपने ईमान को मजबूत बनाते हैं। आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक खुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 9, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। ज़बूर नंबर 9, ज़बूर नंबर 9 दूजा हिस्सा, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा।
सरों को झुकाएं। इस दुआ में एल्डर पी अल नासर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदा ने ये फजल किया और हम आज यहाँ पर जमा हो सके हैं इस जगह के लिए, एफसी कॉलेज के लिए और सारी कलीसिया के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे खुदा हमारी इस कलीसिया को एक जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। एफसी कॉलेज के लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे खुदा इस अदारे को बरकत दे, इस अदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और जितना स्टाफ यहाँ पर काम करता है खुदावंद उनके वसीले से इस अदारे की तरक्की में उनका किरदार अदा हो सके। और इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करेंगे और इस बात के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद पूरे पाकिस्तान की कलीसिया की और पूरी आलमगीर कलीसिया की हिफाजत करे, उन्हें एजार आसानियों से महफूज रखे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र गुजारते हैं कि तूने हमें ये कीमती लम्हात बख्शे कि हम तेरी हजूरी में जमा होकर तेरी इबादत, तेरी तस्वीर कर सकें। ऐ खुदा हम जितने भी तेरे लोग यहाँ हाजिर हैं उनके लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र हो कि तूने हमें ये जगह अता की है जहाँ हम आज़ादी के साथ बैठकर तेरी इबादत, तेरी तस्वीर कर सकते हैं। खुदा हम उन तमाम इदारों के लिए जो इस मुल्क में तेरे नाम से चल रहे हैं तो हम उनके लिए बरकत चाहता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ उनके सरबराहान को हिकमत बनाई अता कर ताकि वो तेरे खौफ में इस तरह से इनका इंतज़ाम करें कि ये अदारे तरक्की करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। ऐ खुदा हम तमाम मुबारक में जहाँ इज़हार रसानियाँ हो रही हैं तेरी मिन्नत करते हैं खुदा तो अपना हाथ बढ़ा और वहाँ पे अमन और सलामती अता कर और अपने लोगों को ईमान की मजबूती अता कर ताकि वो इस कड़े वक्त में अपने ईमान को मजबूत करते हुए खुदा उस तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब बन सकें। ऐ खुदा कोरोना वायरस से हम सबको बचा के महफूज रख। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि पहले से काफ़ी हालात बेहतर हो चुके हैं, इसलिए भी तेरा शुक्र करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि जो बाकी मामला अभी थोड़ी सी ये वबा रह गई है खुदा तेरे नाम से ये ख़त्म हो जाए। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 119 गाएंगे। ज़बूर 119 11वां हिस्सा। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। ज़बूर नंबर 119, ज़बूर नंबर 119 11वां हिस्सा।
फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं तो यीशु के नाम के वसीले से उनकी जिंदगी में मुआजिज़ात होते हैं। इस वक्त हम सभी मिलकर अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरखास्त की, उनके लिए दुआ की जाए। उन सबको खुदावंद की हुजूरी में लेकर आएंगे और उनके लिए दुआ मांगेंगे ताकि खुदावंद अपने फजल के वसीले से उन्हें शिफा बख्शे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौके के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया कि हम इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सके। खुदा हम शुक्र करते हैं कि हम एक घराना है और एक खानदान की हैसियत से तेरे बेटे और बेटियां होते हुए यहाँ पर जमा है। और हमारा ये भी ईमान है खुदावंद कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा है। खुदावंद अपनी मौजूदगी के वसीले से यहाँ पर मौजूद हर एक को छू दे, ताकि तेरे छूने के वसीले से हम सभी हर किस्म की बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, जिस्मानी कमजोरी से रहाई पाए। हमें से हर एक खुदावंद तेरी हुजूरी में अपने आप को पेश करता है। खुदावंद तुम्हें छू और शिफा दे। हमारे तमाम ऐसी कमजोरियां और बीमारियां जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें डॉक्टर्स भी डायग्नोस नहीं कर सके, उन सब के लिए खुदावंद दुआ करते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से हर एक तकलीफ जाती रहे। खुदावंद हम अपनी कुव्वत से नहीं बल्कि यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु का नाम सब नामों से आला है और यीशु के नाम में यह कुव्वत और कुदरत है कि बीमारियां दूर होती हैं और शैतान शिकस्त पाता है। इसलिए बड़े ईमान के साथ हर एक तकलीफ को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म उसमें से दूर हो जाए और हमारे जिस्म हर किस्म की बीमारी से रहाई पाए। खुदावंद इसी तरह दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया का हर एक फर्द यीशु के खून की कुदरत में महफूज हो जाए और शिफा पाए। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरखास्त की, उनके लिए दुआ की जाए। हम सब मिलकर उनको तेरी हुजूरी में लाते हैं। खासतौर पर खुदावंद दुआ करते हैं विक्टर साहब के लिए, मिसेज सरवर के लिए, इसी तरह से दुआ करते हैं भाई आसफ रशीद के लिए, भाई फिलिप के लिए, मिसेज नजीर जियाई के लिए, बेटे जोहान के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई कलीम के लिए दुआ करते हैं। और भी जितने लोग किसी भी तकलीफ में मुब्तला हैं, उन सबको तेरी हुजूरी में लाते हैं और तेरी तरफ से उनके लिए शिफा मांगते हैं। यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में मौजूदा हो और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती मिले। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो अपने बेटे यीशु के नाम से उनके लिए मेरास बख्श दे। तेरी तरफ से उनकी जिंदगी में मौजूदा हो, तेरा फजल उन पर नाजिल हो और तेरे फजल के वसीले से तेरी बरकत का, तेरी मोहब्बत का तजर्बा तेरे लोग कर सके और औलाद की नेमत में मिल सके। कोरोना के खात्मे के लिए खुदावंद दुआ करते हैं। यीशु के नाम से पूरी दुनिया से कोरोना खत्म हो जाए, दुनिया बहाल हो सके, मुआशी सरगर्मियां बहाल हो, इबादत आजादी के साथ हो सके, इज्तिमात हो सके, लोग खुशी मना सके, लोग कामकाज कर सके। खुदावंद तू जो कोरोना पेशेंट्स इस वक्त हमारे मुल्क में हैं, उनको भी शिफा बख्श दे। पूरी दुनिया में से कोरोना पेशेंट्स को शिफा दे। कोरोना के बाद जिनके साइड इफेक्ट्स हैं, जिनकी वजह से पोस्ट इफेक्ट्स हैं, जिनकी वजह से वो बीमार हैं, कमजोरी में हैं, उनकी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे और तू फजल कर और शिफा और उठा खड़ा कर। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चंद जरूरी ऐलानात हैं, वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। अगला अतवार अशायरबानी का अतवार है और आज जो लोग नहीं आ सके उनको भी जरूर आगाह करें ताकि आइंदा अतवार जब वो आए तो खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करके आए। इसके साथ ही आइंदा अतवार कन्फर्मेशन की रस्म भी होगी, इस्तेकाम की इबादत होगी, जिसमें जो हमारी कलीसिया में से बच्चों ने पिछले हफ्ते में कन्फर्मेशन का कोर्स किया है। ये 5 दिन का कोर्स है जिसमें हमने खुदा के कलाम उन सबको सीले से वो भी अशायरबानी में शामिल होना शुरू करेंगे। इसलिए जो जिन वालिदैन के बच्चों ने इस्तेकाम के कोर्स में शिरकत की है, उनसे दरखास्त है कि वो अपने बच्चों को आइंदा अतवार 8:30 बजे यहाँ पर ले आएं, क्योंकि 9 बजे हमारी इबादत शुरू होगी, लेकिन उससे पहले आधा घंटा हमें उन्हें बताना है कि किस तरह से इबादत की तरतीब में उन्होंने हिस्सा लेना है। इसलिए 8:30 बजे जो बच्चे इस्तेकाम के कोर्स में शरीक हुए हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएं ताकि हम उनको तैयार कर सकें किस तरह से उन्होंने इस इबादत में शरीक होना है। ये एक खास इबादत है
ایک بابرکت موقع ہے ان گھرانوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو عشائے بانی میں پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ اتوار بھی میں نے اعلان کیا کہ ہم میوزک کلاس کا اہتمام کر رہے ہیں جو کہ 9 جولائی سے شروع ہوگی، اور یہ ہفتے میں 2 دن کلاسز ہوں گی، جمعرات اور ہفتے کی شام کو، اور اس میں ہارمونیم، کی بورڈ اور طبلہ اور گٹار، یہ 4 انسٹرومنٹ سکھائے جائیں گے، اور اس کی رجسٹریشن فی 300 روپے ہے، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنے میوزک کلاس ٹیچرز کے کہ انہوں نے اس کو فی کو بھی کم کیا، 1500 روپے سے 1200 روپیہ فی ہم نے کی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکیں۔ یہ فی جو ہے یہ اس لیے کم رکھی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہماری کلیسیا کے ہیں وہ میوزک کو جان سکیں، میوزک انسٹرومنٹس کو بجانا سیکھ سکیں، تاکہ خداوند کی حمد کے لیے وہ اپنے آپ کو دے سکیں، خداوند کی تعریف کے لیے کلیسیا میں موسیقی کو سمجھتے ہوئے خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کر سکے۔ اس لیے اس بوجھ کو لیں، پیرنٹس جو ہیں وہ ضرور اپنے بچوں کو میوزک انسٹرومنٹ سکھانے کے لیے یا گانا سیکھنے کے لیے جس میں وہ خداوند کی حمد کو گا سکتے ہیں خوبصورت طریقے کے ساتھ، اس کے لیے ضرور اس کورس میں شامل کریں۔ اس کے لیے آپ آن لائن ہمارا جو گروپ ہے فیس بک کا، اس میں بھی فارم موجود ہے، اس کو بھی فل کر کے سینڈ کر سکتے ہیں، اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ شکیل بھائی ہیں، اسی طرح سے نوئل ہیں اور کامران ہیں، اس کو کامران کو ہم ہر طرح سے شامل کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کامران کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، تو آپ لوگ نام لکھوا سکتے ہیں کامران بھی، اور مجھے بھی بتا سکتے ہیں، میں بھی نام آپ کا جو ہے وہ فارورڈ کر دوں گا۔ 9 جولائی سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف 4 سے 5 دن رہ گئے ہیں، جلد سے جلد اپنی مکمل کریں رجسٹریشن، کیونکہ بہت دفعہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب 1 یا 2 کورس گزر جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی اب شامل کر لیں، تو اس سے وہ بچے جو ہیں وہ مس کریں گے جو کلاسز رہ گئی ہیں۔ اس لیے جلد سے جلد اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ میوزک کلاس کے لیے کروا لیں۔ آئے ہم کوائر سے گیت سنیں گے، گیت نمبر 458 458، یہ جو چوتھا ایڈیشن ہے سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب کا، اس میں یہ گیت موجود ہے۔ گیت نمبر 458 سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے، گیت نمبر 458۔
सुने। पुराने अहदनामे में से ज़बूर नंबर 53, ज़बूर नंबर 53, पुराने अहदनामे में से ज़बूर नंबर 53, ज़बूर नंबर 53 और कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए हम सब खड़े होंगे। इस तिलावत में हमारे रहनुमाए बेटी रुखसार ज़िक्रिया करेंगी। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हूँ। कलाम मुक़द्दस में से हमारी रहनुमाई के लिए ज़बूर 53 उसकी पहली 6 आयात, Psalm 53 verses 1 to 6 कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है। मीर मुगन्नी के लिए मखलत के सिर पर दाऊद का मशकील। अहमद ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज बदी की है। कोई नेकोकार नहीं। खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब फिर गए हैं, वो बाहम नजिस हो गए। कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बदकिरदारों को कुछ इल्म नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और खुदा का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर बड़ा खौफ छा गया। वो खौफ की कोई बात न थी, क्योंकि खुदा ने उनकी हड्डियाँ जो तेरे खिलाफ हैमाजन थे बिखेर दी। तूने उनको शर्मिंदा कर दिया, इसलिए कि खुदा ने उनको रद्द कर दिया है। काश कि इस्राएल की निजात सयून में से होती। जब खुदा अपने लोगों को असीरी से लौटा लेगा तो याकूब खुश और इस्राएल शादमान होगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़ने सुने जानकर खुदा खुदा के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में हम कवायद के साथ मिलकर गीत गाएंगे। जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये मुमकिन किया कि आज हम इकट्ठे हो सके, तेरी हमदो सना कर सके, तेरी तारीफ के गीत गा सकें। तेरा शुक्र और पाक रूह के लिए जिसने हमें मामूर किया और मसा किया है, ताकि हम दानाई के साथ तेरे कलाम को सुनने के लिए भी तैयार हो सके। खुदावंद, हम अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं, अपने आप को तेरी हजूरी में लाते और पेश करते हैं। खुदावंद, तू हमारे दिलों को छू और तैयार कर, ताकि आज का कलाम हम में से हर एक के लिए बरकत और तब्दीली का बायस हो। तू हमारी मदद कर खुदावंद, हमारी रहनुमाई कर। मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ खुदावंद, तू अपने पाक रूह के वसीले से अपनी आवाज को तो अपने लोगों तक पहुंचा। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आज ज़बूर की सीरीज को जारी रखते हुए हमने ज़बूर 53 की तिलावत को सुना है, और ज़बूर 53 में हमने जिस बात को देखा है, ये इंसान की हालत के बारे में बयान करती, जिसे हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ये ज़बूर एक आईने की हैसियत रखता है। बतौर इंसान हमारे लिए इस ज़बूर में लिखी गई बातों को कबूल करना मुश्किल है। हम अपने आप को इस ज़बूर के अल्फाज से इनकारी बना सकते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया की हकीकत को बयान करता है। ज़बूर 53 जो है, इसके और ज़बूर 14 के अल्फाज सिवाय एक आयत के बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप ज़बूर 14 को देखेंगे, ज़बूर 53 की तलावत आपने सुनी है, और ज़बूर 14 को अगर घर जाकर तलावत करें तो बिल्कुल एक जैसे अल्फाज आपको मिलेंगे। इसकी पहली आयत भी यही है, अहमद ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। और 53वें ज़बूर की पहली आयत भी यही कहती है, अहमद ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए और उन्होंने नफरत अंगेज बदी की है। यहां पर भी लिखा है, वो बिगड़ गए और उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। 53वें ज़बूर में भी लिखा है कोई नेकोकार नहीं। सिवाय 5वीं और 6ठी आयत के बहुत सी बातें इसमें मुश्तरक हैं, लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये दोनों मज़ामीर मुक़द्दस दाऊद ने अलग अलग औकात में लिखे हैं, लेकिन दोनों मज़ामीर में इंसान की हालत को बयान किया गया है। और मुक़द्दस दाऊद के हवाले से यह कहा जाता है कि यह पहला ज़बूर उसकी जिंदगी के जवानी के अयाम में था, और दूसरा उसकी जिंदगी के अगले अयाम में है। लेकिन दोनों मौकों पर उसने इंसान की इसी हालत को देखा है जो उसने बयान की है, कि इंसान की हालत उस वक्त भी ऐसी थी, और दहाइयां गुजरने के बाद भी ऐसी है, और सदियां गुजर जाने के बाद आज भी इंसान की हालत इसी तरह की है जो इस ज़बूर में बयान की गई है। और मैंने अर्ज भी किया कि यह ज़बूर इंसान को, दुनिया को आईना दिखाता है कि इंसान की हालत क्या है। और खुदा का कलाम यकीनन एक आईने की तरह है। बहुत दफा हम ये चाहते हैं कि खुदा के कलाम में से हमें ऐसी बातें मिलें जो हमारी खुशी के लिए हो, जो हमें अच्छी लगे, जो हमें पसंद आए, और जिनमें से हमें अपनी तारीफ होती नजर आए। खुदा के कलाम में से कोई ऐसी बात हमारे सामने आ जाए जो हमारी जिंदगी में पूरी होती हो, और हम कहें मैं तो इस पर पहले से अमल कर रहा हूं, और मैं खुश हो जाऊं और फख्र करना शुरू करूं। लेकिन खुदा का कलाम इंसानों को सच्चाई से आगाह करता है, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यानी हमें सच्चाई को सुनने और सच्चाई को कबूल करने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हम ये सोचते हैं कि खुदा के कलाम में से हमेशा हमें वो बातें मिलनी चाहिए जो हमें जाहिर करें कि हम बड़े अच्छे हैं, नेक हैं, रासबाज हैं, खुदा की हर मर्जी को पूरा करते हैं। लेकिन ज़बूर 53 ऐसा नहीं करता। ज़बूर 53 हमारी असली हालत को हमारे सामने पेश करने जा रहा है। इस ज़बूर के सरनामे में लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए
महलत के सुर पर दाऊद का मुश्किल। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो महलत सुर है, शायद ये गालबन ये कोई मातमी सुर है और दुख से दर्दनाक सुर को पेश करता है। और बाज़ स्कॉलर ये कहते हैं कि शायद ये किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा है, जिसमें मीर मुगन्नी को कहा जा रहा है कि वो इस गीत को गाते हुए इस इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा नुमायां करे। जैसे आज भी हम चाहते हैं कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट जब गीत गा रहे हो तो शायद ये वाला इसकी आवाज ऊंची कर दें ताकि ये ज्यादा नुमायां होकर सुनाई दे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये महलत का जो लफ्ज है ये अपनी मुख्तलिफ अशकाल में, मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता है और किसी एक शक्ल में ये एक बीमारी की तरफ इशारा करता है। ये लफ्ज महलत जो है ये किसी एक शक्ल में स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक बीमारी की तरफ भी इशारा है। और खासतौर पर इस ज़बूर के सरनामे में इस सुर का जिक्र करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये ज़बूर इंसान की एक बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है, इंसान की रूहानी बीमारी की तरफ, जो इब्तिदा से आदम और हवा के गुनाह में पड़ने के बाद से लेकर आज तक इंसान के साथ साथ चल रही है। और इस ज़बूर को द सॉन्ग ऑफ मैन्स डिजीज कहा गया है कि ये मजमूर इंसान की बीमारी के बारे में आगाह करता है। इंसान के जिस्म में बहुत सी जिस्मानी बीमारियां आजकल डिस्कवर हो चुकी हैं, बहुत सी साइंस ने बहुत तरक्की की है और ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम हम सुनते हैं जो कभी हमने पहले नहीं सुनी थी। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले जो लोग ज्यादा उम्र के हैं उन्होंने जिन बीमारियों के बारे में कभी सुना नहीं था, आज उन बीमारियों के बारे में हम सुनते हैं। लेकिन कहते हैं कि वो पहले से मौजूद थी लेकिन उनके बारे में डिस्कवरी नहीं की। लेकिन ये ज़बूर जो है एक रूहानी बीमारी के बारे में आगाह करता है जो कि आदम और हवा से आगाज हुआ और आज तक इंसानों में सुरायत किए हुए है। और ये इंसानी जिंदगी का अलमिया है कि इंसान इस बीमारी में आज तक गिरा हुआ है और उसके बारे में मुक़द्दस दाऊद ने खुदा के पाक रूह की तहरीक से लिखा है और आखिर में तसल्ली भी दी है कि इसकी शिफा क्या है, हीलिंग क्या है, बीमारी क्या है और उसके बाद शिफा किस तरह से है। अगरचे इस ज़बूर के इब्तिदाई अल्फाज ये बयान करते हैं कि ये ऐसी बीमारी लगती है जिसकी कोई शिफा नहीं, इसीलिए ये सदियों से, हजारों सालों से इंसान की तख्लीक के बाद जब वो गुनाह में गिरा तब से लेकर आज तक चलती आ रही है। लेकिन दुनिया में से ही खुदा के कलाम में हमें अरबों लोग ऐसे भी मिलते हैं जो इस बीमारी से शिफा पा चुके हैं। ये बीमारी गुनाह की बीमारी है, रूहानी बीमारी है और इसके बारे में ज़बूर 53 की पहली और दूसरी आयत और तीसरी आयत बयान करती है। तीसरी आयत में लिखा है, वो सब के सब फिर गए, वो बहम नजिस हो गए। फिर उसके बाद दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालब है या नहीं। लेकिन तीसरी आयत में खुदा ने जब देखा तो लिखा है कि सब के सब फिर गए, कोई भी नहीं। पहली आयत में लिखा है, अहमद ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज बदी की, कोई नेकोकार नहीं, कोई नेकोकार नहीं। ये लफ्ज जो है ये आलमी तौर पर ग्लोबल एक डिजीज का जिक्र करते हैं। ऑल मैनकाइंड, सब बनी आदम पर खुदा ने निगाह की। इसके लिए दो लफ्ज मुख्तलिफ तराजुम में इस्तेमाल हुए। एक तर्जुमा कहता है ऑल मैनकाइंड यानी तमाम इंसानियत, और एक वर्जन इंग्लिश तर्जुमा कहता है चिल्ड्रन ऑफ मैन यानी तमाम इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुए हैं, हर एक बच्चा जो इस दुनिया में आया है, चिल्ड्रन ऑफ ऑल मैन यानी तमाम इंसानों की औलाद
सारी औलाद खुदा की नजर में गुनाहगार है। इंसानों की नजर में हम बहुत अच्छे हो सकते हैं, इंसानों की नजर में हमारे गुनाह, हमारी खामियां, हमारी कमजोरियां छुप सकती हैं, लेकिन खुदा की निगाह में हर एक इंसान के बारे में खुदा का फैसला है, खुदा का ऐलान है। खुदा के बारे में लिखा कि उसने निगाह की, उसने देखा कि कोई दानिशमंद मिल जाए, कोई एक खुदा का तालब मिल जाए, लेकिन कहता है कि सब के सब सबके सब दे ऑल टर्न्ड अवे, कि सभी खुदा की राह से फिर चुके हैं। यही इसी तरह का वाक्य जो है हमें पैदाइश की किताब के 6 बाब में मिलता है, जब नूह के दौर में खुदा ने देखा। यहां पर भी लिखा है खुदा ने निगाह की। ज़बूर पैदाइश की किताब और उसका 6 बाब भी इसी तरह के हालात को बयान करता है। पैदाइश की किताब उसके 6 बाब की 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है खुदावंद ने देखा। यहां पर लिखा है खुदावंद ने निगाह की, यानी देखा। और पैदाइश की किताब के 6 बाब में लिखा है खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूम हुआ और दिल में गम किया। बड़े आज से हजारों साल पहले की बात है कि खुदा ने इंसान को देखा और उसने कहा बड़ी बदी बढ़ गई है। उसने गम किया और मालूम हुआ। फिर उसके हजारों साल बाद दाऊद फिर देखता है और कहता है कि खुदा ने देखा है और आज भी इंसान ऐसे है। फिर उसके फिर 1000 साल के बाद या 800 या 900 साल के बाद फिर से पालूस रसूल दोबारा से जिक्र करता है रोमियो के नाम खत के 3 बाब में। रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 3 बाब, उसमें दोबारा से मुकद्दस पालूस इंसान की हालत का जिक्र करता है। 3 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। वो कहता है कि कोई भी फौकियत नहीं है, हम पहले ही इल्जाम लगा चुके हैं कि सब के सब गुनाह के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है, फिर मुकद्दस पालूस इसी 53वें ज़बूर और 14वें ज़बूर को कोट करता है दोबारा से। कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। 1000 साल बाद फिर से पालूस ने कह दिया कि सब निकम्मे, सब गुनाहगार हैं, एक भी नहीं, एक भी भलाई करने वाला नहीं। और उसके 2000 साल बाद आज भी यही हालत है। इंसानों का बातन जो है आज भी खुदा से दूर है। हम अपने कामों में, हम अपनी सोचों और ख्यालों में, अपनी नीयत में खुदा की मर्जी के खिलाफ काम करते हैं और खुदा इस हालत से वाकिफ है। इस हकीकत को यह ज़बूर हमारे सामने रखता है। इस ज़बूर का मकसद यह है कि ये इंसानों को बताए, उन पर जाहिर करे, उन पर रिवील करे कि जिस खौल को उन्होंने अपने ऊपर चढ़ाया है या जिस खुशफहमी में इंसान मुब्तला है कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत रास्तबाज है, खुदा की नजर में वो झूठ है। इंसानों के सामने हम अपने आप को, अपने झूठ को छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा के सामने हम अपने झूठ को नहीं छुपा सकते। खुदा जानता है, खुदा वाकिफ है, उसने देखा है, उसने निगाह की है और वो इंसानों में से किसी के दिल को भी रास्तबाज नहीं पाता, क्योंकि हम सभी किसी न किसी तरह से खुदा की मर्जी के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। किसी एक तरह से हम खुदा के मर्जी को पूरा कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से हम कहीं ना कहीं से खुदा की नाफरमानी भी कर रहे होते हैं। ये इंसान के पास की बात नहीं है और खुदा भी इंसान की इस हालत को जानता है। खुदा भी इंसान की इस खामी से वाकिफ है। खुदा इंसान को इल्जाम तो दे रहा है, लेकिन खुदा इंसान के गुनाह के सबब से भी वाकिफ है। इसीलिए खुदा ने 2 अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जिससे खुदा ने जाहिर किया है कि क्यों इंसान खुदा से दूर है।
पहला, फूलिशनेस। अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं, फूल ने, बेवकूफ ने कहा जाता है। वो क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, और इसी तरह से हर मजहब के अपने अपने दिन हैं, हमारा कोई दिन नहीं है, तो हम ऑफेंड होते हैं, इसलिए इनको भी मना किया जाए कि ये दिन ना मनाएं। ये हमारी आजादी पर वार है। अदालत में केस गया तो बुलाया गया दूसरे तरफ के लोगों को भी कि आप अपनी सफाई में कुछ कहें, क्योंकि दरखास्त ये आई है कि आप दिन मनाते हैं, लेकिन इनके पास एथिस्ट जो हैं उनके पास कोई दिन नहीं है। एथिस्ट वो हैं जो खुदा को नहीं मानते, जो कहते हैं कि खुदा नहीं है, इनके पास कोई दिन नहीं है और इनकी दिल आजारी होती है जब आप अपने दिन मनाते हैं। तो उन्होंने कहा इनका दिन भी है। उन्होंने कहा जी इनका कौन सा दिन है, आज तक देखा तो नहीं इनका दिन कभी हुआ। उन्होंने कहा जी 53वें ज़बूर की पहली आयत में लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। तो ये कहते हैं कोई खुदा नहीं, तो ये अहमक हैं, ये फूल हैं, और अप्रैल फूल जो है वो एक दिन है, वो इनका दिन है, इनको कहें वो अप्रैल फूल मना ले, इनका भी एक दिन है। तो ये हमें ना रोके, ये अपना दिन मना ले, क्योंकि ये कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, तो खुदा का कलाम कहता है कि इनका दिन भी है। तो अहमक इनको खुदा ने अहमक कहा है, यानी खुदा जो है ऐसे लोगों के लिए फूल का लफ्ज इस्तेमाल करता है, फूलिशनेस का। और उसके बाद दूसरी आयत में फिर लिखा है ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालब है या नहीं। लैक ऑफ विजडम, यानी अकल नहीं है। पैदाइश की किताब के तीसरे बाब में दोबारा जाते हैं। पैदाइश की किताब का तीसरा बाब, इंसान ने अपनी तरफ से अकल हासिल करने की कोशिश की। पैदाइश की किताब तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है जब सांप ने औरत को बहकाया, तो चौथी आयत में सांप ने औरत से कहा, तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगिज ना मरोगे। 5वीं आयत में लिखा बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानित नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। शैतान ने उन्हें लालच क्या दिया था कि तुम्हारे पास खुदा की मानित विजडम आ जाएगी, तुम खुदा की मानित नेको बद को पहचानने वाले बन जाओगे। खुदा ने उन्हें विजडम का, शैतान ने उन्हें विजडम का लालच दिया कि तुम खुदा की मानित, तुम्हारे पास भी विजडम आ जाएगी, इसको खा लो, तुम हरगिज ना मरोगे। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम खुदा की मानद नेकोबाद को पहचानने वाले बन जाओगे। खुदा नहीं चाहता कि तुम उसकी मानद बनो, इसलिए तुम इसको खा लो। इंसान ने विजडम की खातिर, इंसान ने खुदा की मानद बनने की खातिर वो फल खा लिया, लेकिन उस गुनाह की बदौलत खुदा ने इंसान को फूलिश, अहमक कहा है। दानिशमंद होने की कमी के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। और इमसाल की किताब के 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। यानी अगर हम खुदा का खौफ रखते हैं तो विजडम स्टार ईमान से होती है। हम दुनिया में बहुत विजडम के चर्चे देखते हैं, साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें, अकल की बातें और बहुत कुछ हकायतें बयान की गई हैं, बहुत डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, नई नई बातें हमारे सामने आती हैं। लेकिन इंसान की जो बातनी हालत है, जो खुदा के नजदीक इंसान को खुदा का पसंदीदा बनाती है, उसके लिए इंसान के पास आज भी हिकमत की कमी है। खुदा के नजदीक इंसान आज भी अहमक है। अगर वो खुदा के वजूद से इनकार कर रहा है, अगर वो खुदा की अदालत से, खुदा के फैसले से इनकारी है, इस हकीकत को मानने से इनकारी है कि खुदा फैसला कर सकता है, खुदा देखता है, खुदा हमारी हालत से वाकिफ है, तो खुदा ऐसे लोगों को अहमक करार देता है। खुदा ने फूलिश, फूल कहा है। खुदा ने कहा कि इनके विजडम की कमी है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए खुदा ने इस बीमारी का इलाज भी खुद रखा है। आपने ये अल्फाज बड़ी दफा सुने होंगे, और यार इन्हों नहीं पता तो आप ही करते कहते ना कि वो इन्हों इन्नी अकल होती तो की कर सकता से, चलो तुसी आप ही कुछ कर दो, तुसी आप ही दस दो, ठीक है ना। कहते ना हम किसी समझदार कहते हैं छोटा बच्चा, उससे पता नहीं है, आप बता दें, आप इसका हाल पेश कर दें, उसको नहीं आता। इसी तरह से इंसान
اس گناہ سے، اس بیماری سے رہائی پانے میں آج تک بے بس ہے۔ یہ صدیوں سے انسان کے آغاز سے باطنی ناپاکی جو ہے، نجس ہو کہتا ہے وہ باہم نجس ہو گئے ہیں۔ خدا فیصلہ سناتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی دانش مند نہیں ملا، کوئی بھی نیک نہیں ملا، سب نجس ہو گئے ہیں، سب ناپاک ہیں، سب کے دل ناپاک ہیں، لیکن ان کا علاج انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کا علاج خدا کہتا ہے کہ ان کے پاس خود موجود، خدا کے پاس موجود ہے۔ چوتھی آیت میں وہ لکھتا ہے کہ 5ویں آیت میں کہ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، وہ خوف کی کوئی بات نہیں۔ گناہگار شخص چاہے بڑے دھڑلے سے یہ انکار کر دے کہ میں خدا کی کسی بات کو نہیں مانتا، لیکن خوف ان کے دل میں موجود رہتا ہے۔ قائن نے بڑی دلیری کے ساتھ حابل کو قتل کیا ہے، لیکن خوف اس کا موجود ہے کہ جو کوئی بھی مجھے پائے گا، دیکھے گا، ہلاک کر ڈالے گا، قتل کر ڈالے گا۔ خود اس نے حابل کو قتل کر دیا ہے، لیکن اپنے اندر کے خوف کو وہ نہیں نکال سکا۔ گناہگار شخص جب گناہ کرتا ہے تو خدا کے سامنے وہ بضد ہو کہ میں نے اپنی حالت سے منع باز نہیں آنا، لیکن اس کے اندر کا خوف اسے ضرور جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی حالت خدا نے بیان کی گئی ہے کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ گناہ کرتا بھی جائے پھر بھی دلیری اس میں نہیں آتی، ڈرتا وہ پھر بھی رہتا ہے، ڈرپوک وہ پھر بھی رہتا ہے۔ جتنا گناہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں خوف بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی خوف اس میں آتا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا نے کہا کہ ان کا مقابلہ میں کروں گا، میں ان کو شرمندہ کروں گا، میں ان کو شرمندہ کر دوں گا۔ اور بعض لوگ اس میں خاص طور پر ذکر بھی کرتے ہیں، مفسرین کچھ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ اسرائیل کے دشمنوں کے لیے بیان کی گئی، کہ اسرائیل کے جو دشمن تھے اس میں خاص طور پر تواریخ کی دوسری کتاب کی 20ویں آیت میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ بنی مواب اور بنی امون اور اس کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافت سے لڑنے کے لیے چڑھائی کی، شاہ یہودا سے لڑنے کے لیے چڑھائی کی، اور شاہ یہودا نے، یہوشافت نے اور یروشلم کی جماعت کے تمام لوگوں نے روزے کی منادی کر دی۔ تواریخ کی دوسری کتاب کی 20ویں آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے، کیونکہ اس سے بتایا گیا، وہ ڈر کے انہیں بتایا گیا کہ ایک بڑا انبو آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے لڑنے کے لیے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم ان سے لڑ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ روزہ رکھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ سارے لوگ دعا کے لیے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے دعا کرنی شروع کی، اور خدا کو تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے انہوں نے کہا، 6 آیت میں لکھا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ کیا سب قوموں کی مملکت پر تو ہی حکومت نہیں کرتا؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ انہوں نے خدا کو کہا کہ یہ جگہ تو نے ابراہیم کو دی تھی ان لوگوں کو نکال کے، تاکہ ہم اس میں بسیں، اور اس میں ایک مقدس بھی ہم نے بنایا ہے، وہ تیرے نام سے کہلاتا ہے، اور اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے تیرے حضور کھڑے ہیں۔ یہ دعا مقدس سلیمان نے کی تھی۔ مقدس سلیمان نے جب ہیکل کی تقدیس کی تو اس نے یہ دعا کی تھی کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی بھی وبا، کوئی کال یا کوئی بھی دکھ مصیبت ان پر آئے گی تو یہاں پر کھڑے ہو کر یہ دعا کریں گے تو سن لے گا۔ تو انہوں نے اسی طرح سے، انہوں نے جب سنا کہ یہوشافت امونی حملہ کر رہے ہیں، موابی حملہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر ہم نے گھر بنایا اور یہاں پر ہم نے دعا کی تھی کہ کوئی بھی کال، کوئی بھی وبا یا کوئی آفت آئے گی تو ہم تیرے حضور کھڑے ہوں گے اور تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اس مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے تو تو سن لے گا اور بچا لے گا۔ اور بھی باتیں انہوں نے خدا کی حضوری میں کی۔ پھر اس کے بعد خدا نے انہیں جواب دیا۔ خدا نے کہا کہ تم اس بڑے انبو سے نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا۔ اور پھر آگے اس خدا نے کہا کہ میں ان سے لڑوں گا، تمہیں لڑنا نہیں پڑے گا، خوف نہ کرو، ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلے کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔
यूसुफ जो है बादशाह जो है वो सर नगू होकर जमीन तक झुका और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सिजदा किया और फिर उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिए। बनी कहात, बनी कोरा ने और लावियों ने बुलंद आवाज में ज़बूर गाने शुरू कर दिए, खुदा की हमद करनी शुरू कर दी, तारीफ की। और 22 में लिखा कि जब उन्होंने गाने और हमद करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोहे बनी अमून और मुआब कोहे शेर के बाशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए और खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोहे शेर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़ आए थे कमीन वालों को बैठा दिया, सो वो मारे गए। खुदा ने और लोगों को उनके साथ लड़ाया। खुदा ने कहा कि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, जंग ये मेरी है, मेरे लोग हो और ये मेरी जंग है और तुम सामना करने को जाना, लेकिन लड़ाई उनकी दूसरे लोगों के साथ होगी और लोग उन्हें मार रहे हैं। जब यूसुफ और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि उनको ले जा भी ना सके और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसको बटोरने में लगे रहे और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए क्योंकि उन्होंने वहां खुदावंद को मुबारक कहा, इसलिए उस मकाम का नाम आज तक बराका की वादी है। तब वो लौटे, यानी यहूदा और यरूशलेम का हर शख्स और उसके आगे आगे यहोशू, ताकि वो खुशी खुशी यरूशलेम को वापस जाएं, क्योंकि खुदावंद ने उनको और उनके दुश्मनों पर शादमान किया था। सो वो सितार और बरबत और नरसिंगे लिए यरूशलेम में खुदा के घर में आए और खुदा का खौफ उन मुल्कों की सब सल्तनतों पर छा गया जब उन्होंने सुना कि इस्राएल के दुश्मनों से खुदावंद ने लड़ाई की है। ये जो 29वीं आयत है ये गैर कौमों पर, खुदा के लोगों के मुखालिफों पर खुदा के खौफ को जाहिर करती है। और इसी तरह जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले तो उस वक्त भी खुदा के लोगों के साथ खुदा चलता रहा, रात के वक्त आग की सतून में और दिन के वक्त बादल के सतून में, और इर्द गिर्द की कौमों के बारे में लिखा है कि उन पर बड़ा खौफ छा गया। वो डर गए कि ये कौम जो आ रही है इनका खुदा जो है वो इनके साथ है, और लोग डर गए। जहां से वो गुजरते थे कौमें डर जाती थी। और ये ज़बूर जो है ये भी इसी तरह से खुदा के लोगों की और वो लोग जो खुदा के मुखालिफ हैं उनके बारे में बयान करता है कि जो खुदा के मुखालिफ लोग हैं, खुदा के लोगों के मुखालिफ लोग हैं, जो ये कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, जो खुदा को मानने से इनकारी हैं, जो यीशु की कुदरत को मानने से इनकारी हैं, वो भी खौफ में मुब्तला हैं कि अपने गुनाहों की माफी का क्या इलाज करे। हर कौम जो मसीह पर ईमान नहीं रखती वो भी गुनाह की अदालत के बारे में परेशान है कि आइंदा क्या होगा। कुर्बानी करते हैं मुख्तलिफ तरह से। इस्राएल के लोग जो हैं वो भी आज तक कुर्बानियां करते हैं। मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ माशरे कफारे के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। गुनाह भी करते हैं लेकिन खौफ भी मौजूद है। सोल्यूशन पास नहीं है, शिफा नहीं है, हल नहीं है कि इस गुनाहों के कफारे का हल क्या हो। खौफ उनके दिल में भी मौजूद है। और इस ज़बूर में खुदा के लोगों को तसल्ली दी गई है कि गुनाहों से रहाई, बातनी नापाकी का इलाज खुदा करेगा। और उसने किस तरह से किया। 6 आयत में लिखा है, काश इस्राएल की निजात सय्योन से होती। जब खुदा अपने लोगों को असीरी से लौटा लाएगा तो याकूब खुश और इस्राएल शादमान होगा। और इस बात को, इस दुआ को खुदा ने पूरा किया यीशु के वसीले से। यीशु के बारे में फरिश्ते ने खबर दी, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो तुम सारी उम्मत को उनके गुनाहों से निजात देगा। यहां पर लिखा, काश इस्राएल की निजात सय्योन से होती। और फरिश्ते ने यह पैगाम दिया कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु के वसीले से खुदा ने शिफा का इंतजाम किया पूरी दुनिया के लिए। और जब यहां पर दूसरी आयत कहती है कि खुदा ने आसमान से पूरे बनी आदम पर निगाह की तो कोई भी
انسان راست باز نہیں، اس نے پوری دنیا کے لیے خدا نے یسوع کے وسیلے سے گناہ سے رہائی کا انتظام کیا ہے۔ رومی کے خط کے 5ویں باب میں ہم اس رہائی کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس برکت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ رومی کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ رومی کے خط کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک سولوشن، شفا کو پیش کرتی ہے، حل کو پیش کرتی ہے کہ حل کیا ہے بیماری کا، اس بڑی بیماری کا جس میں انسان ہزاروں سالوں سے گرا ہوا ہے اور اس سے انسانوں کو شفا نہیں مل رہی، مختلف طریقے ڈھونڈ رہا ہے، مختلف شفا کے لیے حربے استعمال کر رہا ہے، مختلف جگہوں پر جا کر، بہت ویران جگہوں پر جا کر تپسیا کرنے کے وسیلے سے، چلے کاٹنے کے ذریعے سے، قربانیاں کرنے کے ذریعے سے، کفارے دینے کے وسیلے سے، ہدیہ جات دینے کے وسیلے سے، صدقے دینے کے وسیلے سے، مختلف طرح سے انسان کوششیں کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہو جائے، لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ خود ہلکا نہیں ہو سکتا۔ خدا اس بوجھ کو اپنے بیٹے یسوع پر لاد دیتا ہے تاکہ اس کا بیٹا یسوع ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر ہمارے لیے باطنی پاکیزی کا انتظام کرے، تاکہ ہمارے دل پاک ہو جائیں، تاکہ جب خدا نگاہ کرے، جب خدا دیکھے تو اسے یسوع کے خون سے دھلے ہوئے لوگ بھی نظر آ جائیں، یسوع کے خون سے پاک کیے ہوئے لوگ بھی نظر آ جائیں، تاکہ خداوند ہمیں دیکھ کر، کلیسیا کو دیکھ کر، جو یسوع کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، جو اس دنیا میں رکھے گئے ہیں، ان کے وسیلے سے خوش ہو سکے کہ جو انتظام اس نے اپنے بیٹے یسوع نے کیا ہے، لوگوں نے اس کو لیا ہے۔ یہ ایک عالمی بیماری کا ذکر ہے۔ عالمی بیماری کیا ہے؟ ایک تو پینڈیمک آج کل ہے جو کرونا ہے، مختلف پینڈیمکس آئی ہیں، یہ روحانی عالمی بیماری کا ذکر ہے۔ روحانی عالمی بیماری گناہ ہے جو ہر انسان کے دل میں ہے، اور اس سے شفا یسوع کے خون میں ہے، جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع میں ہمارے لیے انتظام کیا۔ اور پالوس نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ بیمار کو بڑی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیمار ہو اور ہم اسے باتیں کرتے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیمار کہتا ہے کہ میں اگے تڑفن دیا تسی اگوں مینوں گلاں کر دے۔ ایسے نا بیمار کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اسے کوئی بات کرے، لیکن خدا بیماروں سے محبت کرتا ہے، جسمانی طور پر بھی، اور ایک بڑی جو پینڈیمک ہے، روحانی بیماری جو ہے، گناہ کی بیماری، ان سے بھی خدا محبت کرتا ہے۔ اور خدا نے اپنی محبت کی خوبی کو یوں ظاہر کیا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے، مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اس روحانی، باطنی، عالمی بیماری کی شفا یسوع کے خون میں ہے۔ زبور 53 ہماری حالت کو بیان کرتا ہے۔ آج یہ آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص گناہ گار، اور خدا کی بات درست ہے، اس کا کلیم درست ہے کہ کوئی بھی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ واقعی ہم میں سے کوئی بھی خدا کی مرضی پر پورا نہیں اتر سکتا، کوئی بھی خدا کی شریعت کو پورا نہیں کر سکتا۔ صرف یسوع کے وسیلے سے، اس کے خون کے وسیلے سے ہماری شفا ہے۔ اس شفا کو لیں، یسوع کے خون کو اپنے دل پر لیں، تاکہ ہم اس کی نظر میں راست باز ٹھہر سکیں۔ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سوائے یسوع کے خون سے دھلے ہوئے لوگ۔ آئے ہم اپنے دلوں کو خدا کی حضوری میں پیش کریں تاکہ یسوع کے خون سے ہم دھل جائیں۔ آئے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی ناراستی کا اقرار کریں، کیونکہ وہی ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے۔
आए यीशु के खून को अपने ऊपर लें, उसके कफारे को कबूल करें, अपनी हालत को पहचानें। हमारी हालत खुदा के सामने खुली किताब की तरह है कि हम सब गुनाहगार हैं, हमें शिफा की जरूरत है। आए आज रूहानी शिफा लें, आए दुआ करें। खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे मोहब्बत करता है। तूने अपने बेटे यीशु के खून से हमें रास्तबाज ठहराने का इंतजाम किया है। खुदा हम कमजोर हैं, हम तेरी मर्जी के खिलाफ काम करते हैं, हम फिर गए हैं, ये हकीकत है, हम इसका इकरार करते हैं। खुदा हम अपनी कमजोरी का इकरार करते हैं, तो अपने बेटे यीशु के खून से हमें धो। हम तेरे पास आते हैं, हम अपने दिलों को खोलते हैं। खुदा हम तुम्हें माफ कर, तेरे बेटे यीशु का खून हमें पाक करे, ताकि जब तो हम पर निगाह करे तो यीशु के खून से हम रास्तबाज ठहराए गए हो और तेरी हुजूरी में रास्तबाज ठहर सके। क्योंकि तू देखता है, तू निगाह करता है, तू गम करता है और दुख करता है जब इंसान जिसको तूने बनाया है वो नापाक नजर आए, वो नारास्त नजर आए। खुदा हम तेरे बेटे यीशु के खून को मांगते ताकि हम तेरे बेटे यीशु के खून से धुल सकें और तू खुशी करे। क्योंकि जब एक गुनाहगार तौबा करता है, जब एक गुनाहगार यीशु के खून से रास्तबाज ठहरता है, तो आसमान पर फरिश्ते भी खुशी करते हैं, आसमान पर तू भी खुश होता है, जमीन पर इंसान भी खुश होते हैं। हम अपने घरानों के एक एक फर्द के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवान बेटे और बेटियों के लिए दुआ करते हैं। जो फिर गए हैं, जो तुझसे दूर हैं, वो सभी तेरे पास वापस आ जाएं। हमारी कलीसिया का हर एक फर्द जो तुझसे दूर है, यीशु के नाम में तेरे पास वापस आ जाए। आज मौका है कि हम अपने घरानों के लिए दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो खुदा से दूर हैं। सभी को खुदा के पास लाएं ताकि वो भी बहाल हों और यीशु के खून से रास्त ठहर सके। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो यीशु, तूने हमारे लिए अपनी जान दी, तूने हमारी खुदा से सुलह करवाई ताकि हम गज़बे इलाही से बच सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 313 गाएंगे। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे। गीत नंबर 313, गीत नंबर 313। इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे।
अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फजल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें, तेरी हमदो सना के जरिए से यीशु के नाम को जलाल दे सकें, तेरे कलाम को सुन सकें और इन हदिया जात को तेरी हजूर में पेश कर सकें जो तेरी दी हुई बरकत में से हमने तुझे लौटाए हैं। खुदावंद इन हदिया जात को कबूल कर, तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे, हमें एक गवाही देने वाली जिंदा कलीसिया बना ताकि हम खुदावंद कौमी सतह पर तेरे बेटे यीशु की बुनियादी के लिए काम कर सकें। खुदावंद तू हमारे साथ हो और हमारी हिफाजत कर, इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा, हमें से हर एक को छू और बरकत दे, हमारे घरानों को, हमारी कलीसिया के हर एक फर्द की खुदावंद तू हिफाजत कर उन्हें बरकत दे। खुदावंद तू हमारे साथ हो, हादसात से, कोरोना वायरस से, बीमारियों के हमले से बचा और तू हमारे जिंदगी से यीशु की गवाही देने के लिए हमें तैयार कर। खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया में जो परेशान लोग हैं, दुख में मुब्तला हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार का इंतजाम हो जाए। और खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जब यहाँ से हम रुखसत होते हैं तो हमें खैरियत से अपने घरों को पहुंचा। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती है।